जैसे सर बता रहे थे, सर ऐसे एकदम स्कूल के टीचर्स रहते ना वैसे सिखा रहे थे कि एकदम छोटी चीज भी वो वापस सिखा रहे थे, जो मेरे में कॉन्फिडेंस में 4 साल पहले से जो था, वो जो मैं लूज कर गई थी। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं वो बिल्कुल वैसे सिखा रहे थे। और उन्होंने पहले ही दिन बोल दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा आप हमको छोड़ दोगे, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो वो चीज को लेके मैं इतना एकदम कनेक्ट फील हुआ कि मतलब क्लासेस तो बहुत होते हैं लेकिन हर क्लास बच्चों को लास्ट तक वो सपोर्ट नहीं देता है, वो तो 2 महीने बाद में छोड़ देंगे। तो वो चीज यहाँ पे प्रीमियम लर्निंग्स में नहीं थी, वो तो फर्स्ट सेशन में ही मुझे ऐसे लग गया, तो मैंने वहीं पे ज्वाइन किया। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Hey everyone, this is Pooja from Premium Learning Systems and you are watching Aspirers to Inspirers, a source of inspiring stories for people aspiring to enter into or grow within IT. So today I'd like to start with a thought that fear and self-doubt, they are the biggest enemies of our potentials. हम सबकी लाइफ में सेल्फ डाउट के मोमेंट्स जरूर होते हैं, and at that point in time all that we need is someone who could clear those clouds of self doubt and show us our goals and dreams in a vivid, clear way. That is the case with our today's guest, Preeti Badhe. She has always been very passionate about working in IT in a hardcore technical field. However, she was deprived of that in her 4 years of experience, and all that she was looking for a mentor who could clear those clouds of self-doubt, who could make her realize her potential, and that happened when she joined Premium Learning Systems. And today, it's been 2 months already, she's working successfully in IT field as a Salesforce developer, and she got the work that she feels she really deserves. Preeti, you're welcome to this session. We are very glad that we could be part of your success journey. Thank you so much, Pooja ma'am. Yeah. So Preeti, how are you? I'm good. How are you? I'm also good. Thank you very much. I'm very happy to see you so successful. Yeah. So Preeti, सबसे पहले आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एंड इस जर्नी में आप अभी कहाँ हो? I mean, आप कहाँ सिलेक्ट हुए हो, कहाँ काम करते हैं, what is your profile? Let the audience know about this first, and then we would like to know about your journey एकदम डिटेल में. Okay, fine. So my name is Preeti Ratnakar Badhe. I had completed my Bachelor of Science in 2017. I am a 2017 pass out. Okay. It was I am graduated from Garware College, and it was a Bachelor of Computer Science degree that I have achieved. Okay. तो उसके बाद मैंने एक रिनोड IT कंपनी ज्वाइन किया था, Infosys, and वहाँ पे I was really doing good in coding part, Python, Java, सब सिखा रहे थे, and it was I was really doing good as per my scores over there. But due to project requirement, I was put into a non-technical job, which was non-technical as in network support job, जहाँ पे ticketing होता है, तो वैसा job में मुझे डाला गया था. तो वो सब कुछ तो मैं कर रही थी, क्योंकि अभी बॉन्ड रहता है कंपनीज में, तो वहाँ पे करना पड़ता है जो भी तुम्हें जिस भी प्रोजेक्ट में तुम्हें डाला है वो करना पड़ता है. तो वो सब मैं वहाँ पे अच्छे से कर रही थी. लेकिन इस दौरान 4 साल मैं कैसे इन्फोसिस में मेरे पास आउट हो गए मुझे समझ में नहीं आया. एंड इन दोस 4 years ऑफ जर्नी मैं एक्चुअली एक डेवलपर बनना चाहती थी फ्रॉम 2017, जो मैं सपना भूल गई थी एक्चुअली मेरा, कि मुझे डेवलपर भी बनना है या अब मुझसे होगा या नहीं. ये सबसे बड़ा जो डर होता है ना, वो मेरे में आ गया था कि there was a time जब मैं डेवलपमेंट में बहुत अच्छी थी, लोग मेरा कोड चुराते थे, लिटरली देख के कॉपी करते थे कि अच्छा तुम बहुत अच्छा कर रही हो. लेकिन अभी ऐसे एक टाइम आ गया था कि जहाँ मैंने कम्प्लीटली मेरा जो सेल्फ डाउट होता है वो मुझ में आ गया था कि अब मुझसे शायद नहीं होने वाला है, अब मैं डेवलपमेंट में जा ही नहीं पाऊंगी. ये डर आ गया था मुझ में, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था. सो उस टाइम पे मेरे अंकल ने मुझे बोला कि अरे तुम सेल्सफोर्स क्यों नहीं ट्राई करती. ही इज अ मैनेजर इन सेल्सफोर्स डेवलपमेंट. तो उन्होंने ही मुझे बोला कि मेरा फ्रेंड है, वो अच्छे क्लासेस लेते हैं, तो आप उनके यहाँ पे ज्वाइन कर लेना.
सो आई वाज लाइक ओके फाइन, आई विल जॉइन देम। तो आप बताओ मुझे। वो बोले डेमो क्लासेस है अभी तुरंत ही है, तो तुम उनसे एक बार डेमो क्लासेस वगैरह देख लेना, उसके बाद में यू कैन डिसाइड तुम्हें करना है आगे कैसे। तो दैट्स हाउ आई जॉइन प्रीमियम लर्निंग्स। मैंने डेमो क्लासेस का फर्स्ट ही दिन किया था लेक्चर, एंड आई वाज लाइक मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है, बिकॉज एक तो वो अंकल के फ्रेंड भी थे, एंड प्लस जैसे सर बता रहे थे, सर ऐसे एकदम स्कूल के टीचर्स रहते ना वैसे सिखा रहे थे कि एकदम छोटी चीज भी वो वापस सिखा रहे थे, जो मेरे में कॉन्फिडेंस में 4 साल पहले से जो था वो जो मैं लूज कर गई। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं वो बिल्कुल वैसे सिखा रहे थे, और उन्होंने पहले ही दिन बोल दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा आप हमको छोड़ दोगे, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो वो चीज को लेके मैं इतना एकदम कनेक्ट फील हुआ कि मतलब क्लासेस तो बहुत होते हैं, लेकिन हर क्लास बच्चों को लास्ट तक वो सपोर्ट नहीं देता है, वो तो 2 महीने बाद में छोड़ देंगे। तो वो चीज यहाँ पे प्रीमियम लर्निंग्स में नहीं थी। वो तो फर्स्ट सेशन में ही मुझे ऐसे लग गया, तो मैंने वहीं पे ज्वाइन किया सेल्सफोर्स डेवलपर का कोर्स। जैसे सर बोल रहे थे उस हर चीज को फॉलो करते गई, एंड देन विद इन जस्ट 2 or 3 months मैं वो कोर्स खत्म भी नहीं हुआ था तब तक तो इटर्नस का ऑफर मेरे हाथ में आ गया था। क्या बात है, क्या बात है। मेरी फर्स्ट कंपनी जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था और फर्स्ट राउंड में ही मैं सिलेक्ट हो गई थी, एंड आई स्टिल रिमेम्बर योर इंटरव्यू सेशंस, दैट आल्सो हेल्प्ड मी अ लॉट। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट बैच इंटरव्यू सेशंस की जहाँ पे मैं थी, एंड या इट हेल्प्ड मी अ लॉट। Thank you very much, Preeti. So basically, you always had that technical spark, right? You always had that. Yes. But technical touch छूट गया था. That's what happened with you, right? Completely छूट गया. Yeah. और उस वजह से कहीं तो एक self doubt आना शुरू हो गया. Right. Yes. And with all the preparation and maybe mentoring, वो self doubt हट गया and your dreams and your goals became clearer to you. Great. तो spark तो already था, बस उसे सेल्फ डाउट के क्लाउड से बाहर लाना बाकी था। ग्रेट प्रीति, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। सो बेसिकली थोड़ा सा जो ऑफ ट्रैक चल रही थी आपकी गाड़ी करियर की, वो ट्रैक पे आ गई बात से। बिल्कुल, ग्रेट। तो प्रीति, you're already successful, I guess. It's already 2 months you're working in Eternus now, right? Yes. So how does it feel now? अच्छा। It feels really good. मतलब जो मैं एक नॉन टेक्निकल में थी, मुझे जो सेल्फ डाउट था वो अब यहाँ पे नहीं है। मतलब अभी ऐसे लगता है कि मैं ये हमेशा से कर सकती हूँ, बस मुझे किसी ने पुश करने की जरूरत है कि तुम ये कर सकती हो और तुम कर सकती हो। I still remember the first day interview sessions. We had that interview sessions जहाँ पे मॉक इंटरव्यू हुआ था, और सर को मैंने पूछा था, सर मैं तो अभी नॉन टेक्निकल में हूँ, मेरा गैप आ गया है, इस टेक्निकल बैकग्राउंड से जो होता है वो मेरा गैप आ गया है। अब मैं अगर वहाँ पे जाऊंगी कहीं पे भी, तो मुझे टेक्निकल चीज में लेंगे या नहीं लेंगे, मुझे डेवलपर का रोल देंगे नहीं देंगे, क्या होगा। करेक्ट। एंड सर ने मुझे एक चीज बोली थी कि तुम्हें पता है तुम्हारी कंपनी ने क्या किया है, स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन के जाले निकालने का काम दे दिया है। एंड I felt so motivated that yes, I can do that. He has never met me. सर ने आज तक कभी मुझसे मिले नहीं हैं, बट उनके लेक्चर्स में सर बोलते थे, हम लोग सुनते थे, उन्होंने कभी मुझे मिले नहीं है, कभी कुछ हमारी 1-to-1 बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी उस इंटरव्यू सेशन के बेसिस पे he said this thing that तुम तो स्पाइडरमैन हो, तुमको स्पाइडरमैन के जाले निकालने का काम दे दिया है यार। तो ये तो वहां पे मुझे जो मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लूज होते जा रहा था, वो एकदम से पूरा ऐसे बूस्ट हो गया आया कि मैं तो कर सकती हूँ ये सारी चीजें। तो अभी इटर्नस में हूँ, तो यहाँ पे वो चीज मुझे बहुत हेल्प कर रही है। एक्चुअली कॉन्फिडेंस जो बूस्ट हुआ था मेरा, वो चीज मुझे हेल्प कर रही है इस चीज में, यहाँ पे ट्रेनिंग लेते वक्त। एंड बिकॉज सर रियल टाइम सिनेरियोज को ले के सारी चीज समझाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि रियल टाइम सिनेरियोज, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की बहुत जल्दी समझ आने लग जाते हैं। बहुत हेल्प हुए इस चीज का। तो बेसिकली अभी स्पाइडरमैन जाले साफ नहीं कर रहा है। Exactly. अभी स्पाइडरमैन की जैसे काम कर रहा है। बिल्कुल
Spider-Man doing its own job. Great, Preeti. Yeah. तो एक्चुअली बेसिकली वो एक मोमेंट होता है या फिर एक एडवाइस होता है जहाँ पे हमारा थॉट प्रोसेस 360 डिग्री चेंज होता है. Exactly. आई गेस दैट वाज द मोमेंट, है ना? That was the moment. बिल्कुल. तो प्रीति, you're already successful now. You're already into, the field where you wanted to be. तो इस जर्नी के दौरान मतलब कैसी थी ये जर्नी? During this journey, what was your biggest obstacle? Biggest obstacle was my self-doubt. That was and that had always been the obstacle that I faced. बिल्कुल कहते हैं कि सेल्फ डाउट हैज किल्ड मोर ड्रीम्स देन फेल्योर एवर विल. बिल्कुल मतलब सेल्फ डाउट जो है वो हमें पीछे खींचता रहता है. इट होल्ड्स अस बैक, राइट? और एक बार उससे डोर टूट गई, देन वी आर अनस्टॉपेबल. वी आर लाइक अ जगरनॉट. ग्रेट प्रीति. तो दिस इज अबाउट द ऑब्स्टैकल. व्हाट वाज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन दिस जर्नी? Biggest strength is I had very much of dedication towards what I do. तो जब तक वो चीज होती नहीं है मैं उठती नहीं हूँ उस जगह से. तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था. मतलब अभी जैसे ऑफिसेस थे, मैं शिफ्ट में काम करती थी. सुबह 6 बजे की शिफ्ट होती थी, 6 to 3 मैं काम करती थी. घर आती थी 4 o'clock तक. 4 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी, पर्सनल स्टडीज. 7 o'clock को अपना ट्यूशंस होता था, तो क्लासेस लेते थे सर 7 to 9. वो उसके बाद में खाना खाने के लिए हार्डली हाफ एन आवर एंड देन अगेन 11 तक मेरा स्टडीज. तो मेरा कंप्लीट स्केड्यूल पैक हो चुका था. मेरे पास में टाइम ही नहीं था, कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं बचा था. इतना डेडिकेशन से काम किया था, इतना डेडिकेशन से मैं स्टडी कर रही थी. एंड इवन अगर आपके लेक्चर्स होते थे जब मैं काम कर रही हूँ ऑफिस में, उस टाइम पे भी मैं काम करते करते लेक्चर्स अटेंड करती थी कि नहीं, आई वांट टू परस्यू माय ड्रीम, आई वांट टू स्विच. तो मुझे काम करने के लिए ऑप्शन तो है नहीं, वो तो करना पड़ेगा क्योंकि वो तो पैसे दे रहे हैं मुझे. लेकिन जहाँ जाना है उसके लिए अगर कोई एक रास्ता है तो उस रास्ते को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ. जस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग, आई कैन नॉट डू दैट. आई कैन नॉट जस्ट मिस द क्लासेस और say that I cannot do this. I was still trying to do everything as and when it is possible. So absolutely. आपने पूरी तरह से डिवोट कर दिया था अपने आप को towards your goal, right? पूरी तरह से. बिल्कुल एकलव्य की तरह. दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा था. कुछ भी नहीं दिख रहा था. बिल्कुल बस स्विच करना है, इतना ही एक एम था. और स्विच करना है मतलब किसी भी चीज में नहीं करना है, बस सेल्सफोर्स में ही करना है. तो पूरा डेडिकेशन से उसी चीज में मैं पढ़ाई करे जा रही थी. फोकस जब क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है, राइट? एग्जैक्टली. इट इज सेड दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड. तो हमें मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन मैं अगर हार्ड वर्क नहीं करूंगी कोई और आगे निकल जाएगा. Absolutely. और एक्चुअली जो रेस है वो अपने आप से है, कोई किसी और से तो है नहीं. तो वो भी एक चीज है. Absolutely, Preeti. So yes, your obstacle was the self doubt. Your strength was your dedication and devotion towards your goal, right? उसके बाद you started your journey. तो इस journey के दौरान आपकी कोई thought process change हुई या फिर कोई misunderstanding, जो myth आपके मन में था और वो clear हुआ, ऐसी कोई बात है? मिथ एक्चुअली ये है कि बहुत लोगों को ऐसे लगता है अगर मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे टेक्निकल चीज में मैं नहीं जा सकती. एवरीथिंग इज पॉसिबल. Anything and everything is possible. It's just the matter of your dedication, your hard work, your dedication, and how you want to pursue that. अगर तुम्हें टेक्निकल में जाना है, doesn't matter तुम कहाँ से आए हो, doesn't matter कि तुम्हारा क्या करियर गैप था या तुमने किसी नॉन टेक्निकल फील्ड में काम किया है या क्या किया है, doesn't matter that. बिल्कुल. What matters is your hard work. अगर आपका गोल क्लियर है और आपकी तैयारी है डेडिकेशन की, तो फिर योर बैकग्राउंड डजंट मैटर, फिर आप कहीं से भी आए हो. एग्जैक्टली. बिल्कुल. तो ये जो मुझे लगता था, क्योंकि ऐसा भी है कि मेरी ही कजिन सिस्टर है जो शी हैज डन बैचलर ऑफ बायोलॉजी
बैचलर्स इन बायोलॉजी सब्जेक्ट, बट उसको बायोलॉजी करने की मतलब बैचलर्स ऑफ बायोलॉजी करने के बाद भी जॉब मिल नहीं रहा था, तो शी हैज डन सेल्सफोर्स डेवलपमेंट फ्रॉम प्रीमियम लर्निंग्स इटसेल्फ। तो हमारे क्लासेस से जब उन्होंने वो क्लास किया, उसको लेने के लिए कंपनीज वर फाइटिंग विद ईच अदर। दिस इज व्हाट सर हैज टोल्ड मी। शी वाज लाइक कि अभी मैं बायोलॉजी से तो मैं तो कर नहीं पाऊंगी, लेकिन सर ने बोला तुम सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज को फॉलो करना, उतना डेडिकेशन से काम करना। और एक्चुअली एक दिन ऐसे आया कि सर खुद बता रहे थे, मुझे ही बता रहे थे वो कभी, जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कैसे लेंगे, उन्होंने बोला आपकी कजिन को लेने के लिए 2 कंपनी झगड़ रहे थे कि नहीं मैं लूंगा उसको। हर नेम इज किरण गायकवाड़, तो उन्होंने भी आपके यहाँ से ही क्लासेस किए थे। तो मतलब ऐसा है कि तुम कहाँ पे हो वो मैटर नहीं करता, तुम्हें बस डेडिकेशन से वो चीज करना है, तुम्हें पढ़ाई करते रहना है और सर जो बोलेंगे वो फॉलो करते रहना है, क्योंकि अपना दिमाग चलाओगे कहीं भटक जाओगे। वो सर जैसे रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते से चलोगे, वो करेक्ट, इट विल लीड यू टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। You just have to believe in the direction that your mentor is showing you. Yes, and you have to believe in your own potential. Potential. बिल्कुल फिर कोई मुश्किल बात नहीं। And speaking about your cousin, about whom you just mentioned, I guess biology से technology का उनका सफर, it's outstanding. Yes, it's outstanding. बिल्कुल। और premium learnings के साथ, this is what I would like to tell the audience. Non-IT background, whether it is mechanical, biology और कोई भी background हो, through premium learnings, Salesforce में जाना has become a new normal these days. So yes, even if you think of switching to Salesforce, think of switching to IT, don't be bothered about your background. Just be bothered how much you want it, how badly you want it. बिल्कुल। तो प्रीति, coming back to your journey, ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको सबसे बड़ा सपोर्ट कौन सा रहा, किसका रहा? रादर सबसे बड़ा सपोर्ट तो एक्चुअली मेरी मम्मी, बिकॉज शी वाज ऑलवेज बिहाइंड माय बैक एंड शी वाज लाइक अरे तू कर लेगी, यू जस्ट डोंट नो दैट यू कैन डू इट, यू जस्ट गो अहेड, यू कैन डू इट। माय मॉम एंड देन माय अंकल, अबाउट whom I told you that he is Sir's friend, so his name is ज्ञानेश्वर धुमार। तो वो भी मुझे हमेशा बोलते थे कि अरे यू कैन डू दैट, अगर कोई और कर सकता है तो तुम तो हमेशा से कर ही सकती हो, क्योंकि तुम टेक्नोलॉजी, बिल्कुल तुम्हारा बैकग्राउंड भी टेक्नोलॉजी मतलब है, टेक्निकल था, तो यू कैन डू दैट। तो वो हमेशा मुझे ऐसे पुश करते रहे, कर लोगी। मुझे ही वो नहीं था, बट वो इन द ड्यूरिंग द जर्नी हो गया, खुद पे वो भरोसा आ गया कि मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल ग्रेट। तो ये पॉसिबल हुआ विद अ लॉट ऑफ pushing and lot of motivation, lot of advices and lot of self belief, right Preeti? Yes. तो प्रीमियम लर्निंग्स का इसमें क्या रोल रहा? प्रीमियम लर्निंग्स की कौन सी बात थी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी प्रीति? प्रीमियम लर्निंग्स का एक्चुअली ऐसा है कि वो ना तुम्हें किसी बच्चे के जैसे सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने सेल्सफोर्स डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन किया है तो तुम सिर्फ उतना कोर्स का पार्ट सीख के निकल जाओगे, नहीं। दे विल डू वन थिंग कि वो तुम्हें जावा के बेसिक्स भी सिखाएंगे, वो तुम्हें किसी और HTML CSS, मतलब not only Salesforce course, it is about teaching you the basics, considering you as a child who doesn't know anything, teaching you A B C D सब कुछ। एंड एट द सेम टाइम वो एक टीचर, स्कूल के टीचर जैसे है। मैंने बोला आपको कि सर का ऐसे है, अगर तुम नहीं कर रहे हो ना कुछ तो तुम्हें चिल्लाएंगे, तुम्हें वो बोलेंगे कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, और कोई ये नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मुझे सर की बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि लोग क्या करते हैं, आगे जाके बोलते हैं कि नहीं मैंने 2 साल वहाँ पे सेल्सफोर्स डेवलपर करके ही काम किया है, अब मुझे यहाँ पे स्विच कर दो, जबकि उनका कोई अलग फील्ड से वो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बताते हो कि मतलब झूठ बोल के आगे जाएंगे। करेक्ट। तो सर का ऐसे नहीं था। सर ने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था, कोई भी यहाँ से आगे जाते वक्त झूठ बोल के नहीं जाएगा, आप जो कर रहे हो सच बताना वहाँ पे, वो लोग फिर भी तुम्हें लेंगे। तुम्हें वो पोटेंशियल है, तुम्हें दिखाओ उनको, वो फिर भी तुम्हें लेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। Just show them that you are into Salesforce, you are so much passionate about it, and they will take you.
No need to बिल्कुल। lie about the fact. He तो has मुझे been ये the सारी चीजें प्रीमियम लर्निंग्स की बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि कहीं पे भी झूठ बोल के आगे नहीं भेज रहे, वो बच्चों को एक अच्छे डायरेक्शन में ट्रेन कर रहे हैं. correct. And that is the most important thing that today's generation need. They just want ऐसे फटाफट से solution मिल जाए और मैं आगे निकल जाऊंगी. नहीं. Maybe initially it will be hard, but there will be a bright day in future. So believe in that. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब in this competitive world, you know, it's rare to find people who are, you know, the Yes. strongest supporters of honesty. Yes. And I think Sudhanshu sir is one of that, definitely. Yes. Yes. मुझे आपको और एक चीज बताना बहुत अच्छा, मतलब I would like to tell you बिल्कुल that बिल्कुल. जब मैं इंटरनेट में एक्चुअली मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ की एचआर ने मुझे ये चीज बोल के दिखाई थी कि when I asked her about, so what was your feedback about my interview, and HR was like, there are many people whom I have interviewed, but I have not found anyone who is so genuine. मुझे आप बहुत ज्यादा genuine लगे. तो वो जो सर की बात थी कि तुम सच बोलते जाना, सामने वाला तुम्हें फिर भी लेगा. बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि वो चीज, वो तो एचआर मुझे कभी मिली भी नहीं थी, बट अगेन द सेम थिंग दैट he came to know about that from my call or my attitude towards the interview. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली सर से ही सीखने मिलती है और वो इन रियल टाइम मुझे बहुत हेल्पफुल हुई. ऑब्वियस था, बहुत बहुत हेल्पफुल है ये. What I think, प्रीति, कि हम सब ट्रूथ में बिलीव करते हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि ट्रूथ के साथ हम आगे जा पाएंगे कि नहीं, और वो विश्वास सर दिलाते हैं that you just be truthful and faithful towards your goal and your practices, तो फिर आप powerful हो, right? और फिर वो power when we feel, then we will never derail from the track of truth. Great, great, प्रीति. तो interviews जैसे हुए, आपको feedback भी मिला that you are genuine. How was your overall experience of interviews? Overall experience में बोलूँगी तो that was my first interview, and me joining the interview skills sessions from Premium Learnings had helped me, because ऐसा है कि इंटरव्यू के लिए मैं टेक्निकली तैयारी तो पूरी कर रही थी, मैं मेरी साइड से पूरा डिवोशन से सब कुछ कर रही थी, बट इंटरव्यू में बोलना क्या है, कौन से अप्रोच से वहाँ पे मुझे बताना है कि क्या क्या मैंने सीखा है आज तक, वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड इंटरव्यू सेशंस जो हमारे हुए थे उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था कि कौन से अप्रोच में बताना है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो वहाँ पे पूछे ही जाएंगे, तुम्हें उसके लिए रेडी रहना है. तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुझे हेल्प हुई है वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू दे रही थी, बिकॉज मोर देन if I could do that or not, they were checking my attitude, how I do things, how I deal with the things. Right. ये सारी चीजें वो ज्यादा देख रहे थे मुझ में. Right. तो वो इंटरव्यू सेशंस मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुए. Wow. So basically surprises avoid हुए. हाँ, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा जो इटर्नस मेरी फर्स्ट कंपनी थी, ऐसे भी बोल सकती हूँ, एंड आई गॉट सिलेक्टेड. मतलब मुझे वहाँ पे ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो गई थी जो इंटरव्यू सेशंस में हो गई थी. तो So it was not the first time you were appearing for the interview, क्योंकि mock interviews आपके हो चुके थे already. Mock interviews होते हैं, correct. Great to know that it helped. तो टेक्निकल फिटनेस आपका कैसा रहा? मतलब कैप प्रोग्राम के थ्रू आपने प्रिपेयर किया, बट वाज दैट इनफ फॉर द इंटरव्यूज टू गेट सिलेक्टेड? यस, एक्चुअली मैंने तो सेल्सफोर्स के बारे में ही सीखा था, तो मुझे लगा था कि इंटरव्यू में वही क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन एक्चुअली उन्होंने वो नहीं किया. दे आस्क्ड मी अबाउट C++, HTML, जावा, तो ऐसे सारे बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे. लेकिन बिकॉज सर ने हमें कैप के जर्नी में नॉट ओनली सेल्सफोर्स, दे आल्सो टॉट अस अबाउट जावा. तो मुझे ऑलरेडी वो कंसेप्ट्स भी पता थे, तो आई कुड इजीली आंसर देम कि अच्छा जावा में ये कंसेप्ट ये होता है, वो ये होता है. एंड क्वेश्चन जो मैं बताना चाहूंगी इंटरव्यू के लिए, जो टेक्निकल जो हम बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग के लिए रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेरा जो क्वेश्चन आया था वो उन्होंने बहुत बेसिक सा पूछा था, क्योंकि अगेन द सेम थिंग, बिकॉज इवन द इंटरव्यूअर
they know that ki you are cross-trained Salesforce developer. Right. You are cross-trained into Salesforce, so they won't ask you something beyond basics. They just want to know if your basics are clear, and that is तो yes तो कैप के थ्रू जो आपने बेसिक्स क्लियर हुए आपके, और that was enough actually to crack the interview. Right? Correct. Great. And during the interview preparation, you had gained all the confidence, and एक थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, रिहर्सल काइंड ऑफ आपकी हो गई थी. Correct. तो आप थोड़े आर्म्ड अप भी थे. ग्रेट. तो इस कैप प्रोग्राम के बारे में जब हम बात करें तो यस, डू यू रिमेम्बर एनी थिंग्स दैट सर सेड टू यू, या फिर कोई ऐसी मेमोरेबल चीज है जो कैप के दौरान आपने सुनी, एक्सपीरियंस की? एक्चुअली सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है. अभी एक चीज मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आया. लेकिन कैप के दौरान सर हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि मैं जैसे बोलूंगा वैसे करते जाना, और तुम्हें वो सक्सेस एक दिन मिल जाएगा. कैसे है कि इफ यू फेल टुडे यू थिंक दैट दिस इज द एंड ऑफ इट, बट नहीं. सर हमेशा एक चीज बोलते हैं कि मे बी ये फेल्यूर तुम्हारे सक्सेस की एक स्टेप है. तो उस चीज से तुम पीछे मत हट जाना, तुम उसको तुम्हारे जर्नी का एक स्टेप काउंट करना. उसके आगे का स्टेप में भी सक्सेस हो सकता है, तो तुम वहां से पीछे मत हटना. जब तक सक्सेस वाला दिखता नहीं है, मैं हो गया अभी यहाँ पे प्लेस हो गया हूँ, या तुम्हारा जो गोल है वो तुम्हें मिलता नहीं है, तब तक तुम ट्राई करते रहना, बिकॉज दैट इज अ स्टेप. बिल्कुल स्टेप वाइज प्रोसीजर है ये. यस, सो इट वाज नॉट जस्ट टेक्निकल स्किल्स बट लाइफ स्किल्स भी इस दौरान आपके एनहांस हो रहे थे, आई गेस. ग्रेट. तो प्रीति, ये सेशंस तो ऑनलाइन हुए, राइट? तो ऑनलाइन सेशंस का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि a lot of people are doubtful about the online mode. So how was your experience with the ऑनलाइन मोड? एक्चुअली जैसे सर तो एकदम टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा. वो शायद कभी कभी एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन वो कम नहीं लेंगे कभी. तो इट इज डिपेंडिंग ऑन यू. आपको आपके साइड से भी तो देना पड़ेगा. ऐसे नहीं है कि सर ने सिर्फ क्लासेस चालू करती, बिकॉज ऐसे होता था कि सब लोग क्लासेस आते हैं, ऐसे नहीं होता है. हम लोग 50 लोगों के बैच में हम सिर्फ 25 लोग थे जो वहां पे एक्चुअली ऑनलाइन आके बैठते थे. तो इट इज डिपेंडिंग ऑन यू. यू हैव टू जॉइन, यू हैव टू टेक टाइम आउट एंड यू हैव टू सिट एंड स्टडी. तो ऑनलाइन सेशंस हो या ऑफलाइन, आपको टाइम देना आपके साइड से है, और वो देना पड़ेगा. अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, जो भी हो. बिल्कुल प्रीति. तो ऑनलाइन सेशंस होके भी सर के साइड से तो कभी ऐसे नहीं था कि मैं टाइम पे नहीं आऊंगा. 5 मिनट गलती से भी लेट हो गया, तब भी वो आने के बाद में सबसे पहले बोलेंगे सॉरी हमारे एंड पे पावर कट हो गया था तो इसीलिए. बट 5 मिनट से ज्यादा देर कभी लगाई नहीं है. वो उनके साइड से अगर वो पंक्चुअल हो सकते हैं तो व्हाई नॉट अस, राइट? सो ही वाज रिस्पेक्टफुल towards trainees time also, because even I know that कितने adjustments, कितने compromises से लोग join करते हैं. Many of them are working, many of them are new mothers, many of them they're from different background, different struggles. And मुझे लगता है कि online mode का ये सबसे बड़ा एक benefit है, that wherever you are, है ना, आप किसी भी सिचुएशन में हो, even if you are having a baby with you, you can still switch off your video for some time and then continue learning. So this has been a great advantage of being you also were attending it, while I was working. also working. Right. Yes, I was also working, and मैं ऑफिस में रह के काम करते करते एक जगह पे मेरा क्लाइंट कॉल चलने का, दूसरी जगह पे मेरा क्लासेस का कॉल चलने का, तो मैं दोनों चीज हैंडल कर रही थी उस टाइम पे. Absolutely. Multitasking. Right. So Preeti, a lot of hard work, a lot of dedication, a lot of practice, and you tasted the success, right? So is there a difference between Preeti before getting this success and Preeti after getting this success? Yes, actually है, क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है. अब मुझसे वो काम जहाँ पे मेरा ड्रीम था, लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी, तो अब मेरा वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया है. और सेकेंडली मैंने आपको बोला था मेरे में नेवर गिव अप एटीट्यूड है, लेकिन यार यहाँ पे अगर मैं खाना भी नहीं खाती पहले तो मेरे इटर्नल्स में फर्स्ट 1-2 दिन तो मैंने खाना खाया ही नहीं, लंच ब्रेक ही नहीं लिया, क्योंकि मेरा काम हो नहीं रहा था उस टाइम पे. राइट.
बट ऐसा है कि तुम्हें तुम्हारी हेल्थ की भी तो ये करनी पड़ेगी। तो ये एक चीज जो मेरा वीकनेस भी था कि मैं नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से कभी खाना खाने के लिए जाती ही नहीं। बट अभी ऐसे नहीं हो रहा है, मैं टाइम पे उठ के चली जाती हूँ। मैं बोलती हूँ अभी मुझे खाना खा के आना चाहिए, नहीं तो फिर तो ये वीकनेस मेरा एक्चुअली थोड़ा ओवरकम कर चुकी हूँ, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ अभी। So the new Preeti is more organized, more confident, Yes. you know, with a boosted confidence, है ना? Correct. और self doubt अभी हट गया पूरा। पूरा हट गया। अच्छा, जो 4 साल का नॉन टेक्निकल एक्सपीरियंस था वो धुल गया। धुल गया अभी, अब तो मैं टेक्निकल में फिट हो गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So technical was your passion, your cup of tea, and yes, now you're drinking it. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So Preeti, if you want to talk something else about it, about your journey, about your experience, you can definitely go ahead with it. And so I just yes. want to tell the viewers that it is not about how much you work. Actually, the thing is about तुम कम्युनिकेट कैसे करते हो और तुम उस चीज को प्रेजेंट कैसे करते हो। तुम्हें बहुत कुछ पता है लेकिन तुम अगर बता नहीं पा रहे हो लोगों को तो ये चीज आगे जाके तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती है। अभी इटर्नल्स में भी मुझे सेम चीज मेरे मेंटर से सुनने मिली थी कि तुमने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है लेकिन अगर तुम वो मेरे सामने पुट नहीं कर पाओगे तो फिर इट विल नॉट हेल्प। सो दिस वाज द ग्राउंड रूल ही सेट फॉर मी and I was like, yes, I will be like that. Whatever you're expecting, I will do that. I'll be on point. तो तुम काम कितना कर रहे हो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हो, तुम उस चीज को प्रेजेंट कैसे कर पा रहे हो। तो along with the hard work, you have to work on your communication skills as well. That is really important. Great. So it's not important to just possess. It is equally important that you are able to present. Yes, correct. Yes, absolutely. And I think you have been able to achieve both, to possess and present. Great. Yes. And now you're here. So Preeti, congratulations. Big congratulations on your success. Thank you so much. Yes, we wish you a very successful journey ahead also. And yes, we're very glad that we could be part of your success journey. Yes. I'm very glad actually that I was a part of Premium Learnings. Thank you Preeti. Great mentors guide you to a great destination or success. They lead you to the success. So a mentor like you and Sudhanshu sir are something that I really needed that time. And thank you so much for the love, the support that you have given so far. And there you will be there in the future as well. Yes, जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि बिल्कुल, जैसे सर हमेशा ही बोलते हैं कि तुम हमें छोड़ दोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी भी आपके कॉल्स हमें आते हैं, ऐसे नहीं मैं कहीं और चली गई हूँ, मैं क्लासेस में नहीं हूँ तो आप कॉल नहीं करोगे, नहीं, ऐसे होता नहीं है। तो that is a really good thing about Premium Learnings. Yes, Preeti, students like you who actually bring their dreams, to true with all their hard work, and passion, perseverance. So they are actually the tonic to us to keep, working even harder. So great. Yes, you also inspire us. Thank you. Thank you. Yes, I think that is all. So yeah, see you soon. Bye-bye. Yes, bye-bye.